today we are going to continue on the topic called tongues. आज हम अन्य भाषा के विषय में आगे बढ़ेंगे। Yeah, this is given to people in the new covenant. नए वाचा में ये लोगों को दिया गया है, People who are called as believers. जो लोगों को विश्वासी कहा गया है। Again, I want to say, okay, now if you don't pray in tongues, अगर आप अन्य भाषा में नहीं प्रार्थना करते, Jesus still loves you. यीशु फिर भी आपसे प्यार करते We हैं। love you. हम आपसे प्यार करते हैं। Okay. Number two, if you are fearful about this whole thing called tongues, दूसरी बात, अगर आप ये अन्य भाषा को लेकर डर रहे हो, don't worry. तो चिंता मत करो। Keep listening to the word of God. It will create faith in your heart. सुनते रहो प्रभु का वचन क्या कहता है, उसके द्वारा विश्वास उत्पन्न होगा आपके हृदय में। Okay. Now, if you have any questions, you can talk later. Okay. अगर कोई सवाल है तो हम बाद में बात करेंगे। Yeah, because there are a lot of questions because a lot of people say a lot of things. क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, तो बहुत सारे सवाल भी Okay, होते Mark हैं। chapter 16, verse 17. मार्कुस 16 में 17, These signs will follow those who believe in me. जो लोग मुझ में विश्वास करेंगे ये चिन्ह उनका पीछा करेंगे। What are the signs? क्या है वो चिन्ह? You will cast out demons. आप दुष्ट आत्मा को बाहर निकालोगे। Number two, दूसरी बात, you will speak with new tongues. आप अन्य भाषाओं में बोलोगे। Yeah. Okay, let's go to Paul. What does Paul say? पौलुस क्या कहता है? 1 Corinthians 14, verse 18. पहला कुरिन्थियों 14 में 18, A man who wrote 75% of the New Testament, जिस व्यक्ति ने 75% नए करार का लिखा है, he says, I thank my God. वो कहता है मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। Why? क्यों? Because I speak in tongues. क्योंकि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता Can I हूँ। hear an amen there? 1 Corinthians 14, verse 39. पहला कुरिन्थियों 14 में 39, Yeah. He says, वो कहता है do not forbid to speak with tongues. अन्य भाषा में बोलने से किसी को रोकना मत। Yes, and in this church we don't stop. और ये कलीसिया में हम रोकेंगे नहीं। Okay, only thing is we should do things at the right time. That's all. एक ही चीज है, सही समय पे चीजों को करना So है, that there is no confusion. ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। But in the church, and we encourage everybody to please speak in tongues. कलीसिया में और हम सबको उत्साहित करते हैं कि अन्य भाषा में जरूर प्रार्थना And करें। all God's people say, Amen. Okay, all these things I've spoken last week, ये so I'm सब going मैंने ahead. गए हफ्ते सिखाया है। Okay, 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों chapter 14, verse 18. 14 में 18, Okay, now verse 18, the Message Bible. Okay, Message Bible. मैसेज Please बाइबल note में से it. देख रहे हैं। Okay, now Message Bible is not a literal translation; it's a paraphrase. Okay. मैसेज बाइबल एकदम शब्द से शब्द मिला के वैसा ट्रांसलेशन नहीं है, उसको समझने के लिए इजी पड़ता Yeah. है। So I am not going to take something from there and create a doctrine, but it is just for you to understand. Okay. तो ये भाषांतर इसलिए लिया है ताकि कुछ समझ पाए हम। Look here, what he says. वो क्या कहता है? I am grateful to God मैं प्रभु के प्रति आभारी हूँ। for what? किस लिए? The gift of tongues. ये अन्य भाषा में बोलने के वरदान के लिए। He doesn't say I'm grateful to God for the reward of tongues. वो ऐसा नहीं कहता है कि मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये इनाम दिया है कि अन्य भाषा में बोल पाऊँ। Yeah, he says I am grateful to God for what? वो किस लिए कह रहा है धन्यवाद? The gift of tongues. वरदान अन्य भाषा का। The grace to speak in tongues is a gift from God. ये अन्य भाषा में बोलना ये प्रभु की ओर से भेंट है। So it's not something you do and God gives it to you. तो ये ऐसा नहीं कि आप कुछ करते हो इसलिए प्रभु आपको देते हैं। No, God नहीं। loves you. प्रभु आपसे प्यार करते हैं, That's why He gives that gift to you. इसलिए वो भेंट आपको देते हैं। Now just remember, इतना याद रखना, for a gift, एक भेंट के लिए if I receive it, for me it's free. अगर मैं स्वीकारता हूँ तो ये मेरे लिए मुफ्त होता है। But लेकिन the person who gives it to me, जो व्यक्ति देता है he has paid a big price for it. उसने बड़ी कीमत चुकाई है उसके लिए। So for this grace of tongues to be released in your life, तो ये अन्य भाषा के वरदान आपके जीवन में स्वतंत्र होने के लिए as a gift, एक वरदान, एक भेंट होने के नाते Jesus has paid a very big price for यीशु it. ने बड़ी कीमत चुकाई है उसके लिए। What did He give? यीशु ने क्या दिया? He gave His blood. अपना लहू दिया है। Everybody okay? So if I pray in tongues, Shurobahakama अगर मैं Sunto. अन्य भाषा में प्रार्थना करता So हूँ, this is a gift which God gave it. ये भेंट प्रभु ने दी है। I want to be very honest. When I got this gift, I didn't even ask the Lord for this gift. मैं आपको कहना चाहता हूँ जब मुझे ये भेंट मिली तो मैंने मांगा भी नहीं था। Doesn't mean that I am very special. ऐसा नहीं कि मैं कोई खास हूँ। You are a child of God. आप भी प्रभु के बच्चे हो, I am a child of मैं भी God. प्रभु का We बच्चा are हूँ। in the same family. हम वही परिवार का भाग है।
What I am trying to say is God is eager to give you the gift. प्रभु बहुत उत्सुक है आपको देने के लिए ये भेंट। Can I hear an amen there? Now I just want to say this so that you just understand. It is not something special given to special people. ये No, कोई no, no. खास चीज खास लोगों को दी जाती है ऐसा नहीं है। No, it's given to His children. अपने बच्चों को प्रभु देते हैं। Can I hear an amen there? Amen. I still remember I washed my clothes. I was in the college. I washed my clothes and I went to dry my clothes. पास्टर कह रहे वो कॉलेज में थे, कपड़े धोए थे और कपड़े सुखाने जा रहे थे। Yeah, and as I went up to dry my clothes, I was singing an English song. और जैसे मैं कपड़े सुखा रहा था तो मैं अंग्रेजी में गीत गा रहा था। And suddenly that अचानक English became some other language. वो अंग्रेजी कुछ और ही भाषा बन गया। Can I hear an amen? Okay. So when that language began, so I suddenly stopped. तो जब वो नए शब्द आने लगे ना तो मैं चुप हो गया। I thought, what's happening? मैं सोचने लगा ये हो क्या रहा So है। I stopped. तो मैं रुक गया। Then again I started to sing in English. फिर से मैं इंग्लिश में गाने लगा। Okay, and then again the words are coming. और फिर से वो नए शब्द आने लगे। So I just stopped. I मैं रुक thought गया। something is not okay. तो मैं सोचने लगा कुछ गड़बड़ है। I'm trying to speak in English and मैं- I'm saying something मैं else. इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ तो अजीब बोल रहा हूँ। Suddenly I remembered. अचानक मुझे याद अरे आया यार, in my house also there are two people who do all this, you know. मेरे घर में भी दो लोग हैं जो ऐसा कुछ तो बोलते हैं। Yeah, my mother and father. मेरे मम्मी पापा। I then realized, oh, they in Tamil they say, did you get Anya Bhasha? तमिल में पूछते हैं कि अन्य भाषा मिला क्या? They you know all the Christians they say, did you get Anya Bhasha? Did you get Anya Bhasha? I never understood what this whole मुझे thing ये is. समझता नहीं था जब वो पूछते रहते थे ऐसे कि अन्य भाषा मिला क्या, अन्य भाषा मिला What I क्या? want to tell you जो is, मैं कह रहा हूँ ये है Jesus loves you यीशु आपसे प्यार करते हैं। and He loves to give you good अच्छी gifts. भेंट देना प्रभु को बहुत पसंद है। For you to get this. आपके लिए ये लेने के लिए Yeah, it's very simple. ये बहुत आसान है। Very. Luke chapter 11 verse 13. लूका 11 में 13। Luke 11 verse 13. लूका 11 में 13। If we fathers, earthly fathers, being evil, we love to give good gifts. अगर स्वाभाविक पिता होकर अच्छी भेंट देना हमें पसंद है, How much more will your heavenly Father love to give the Holy Spirit to those who ask Him? कितना ज्यादा स्वर्गीय पिता पसंद करते हैं पवित्र आत्मा को देने के लिए जो लोग उनसे प्यार करते हैं। So you don't need to fast 100 days to receive tongues. तो आपको 100 दिन उपवास करने की जरूरत नहीं कि आपको अन्य भाषा का वरदान ऐसा मिले। कहीं पे भी लिखा नहीं है, कहीं पे भी। Gift is only with respect to gift in the Bible you have to ask the Lord. That's all. बाइबल में जो वरदान होते हैं ना सिर्फ मांगना पड़ता है, उतना ही है। या हम लोग बोल नहीं सकते मेरा बर्थडे कल गिफ्ट लेके आने का ऐसा नहीं कर सकते, बराबर? Yes. मैंने बोल रहा है। Yes. Yeah, you can't do it. But in the Bible, लेकिन बाइबल में if you want a gift from God, अगर प्रभु से कोई वरदान चाहिए ना, you should just tell Him, I want आपने this प्रभु से gift. सिर्फ कहना है मुझे चाहिए, Because He can't push the gift on you. क्योंकि प्रभु अपने वरदान आपके ऊपर ऐसे धकेलेंगे नहीं। Yeah, He can't. नहीं, वो ऐसा नहीं करते। He is very gentle. वो कोमल व्यक्ति He है। will show you how beautiful that gift is. वो आपको दिखाएंगे कि वो वरदान कितना खूबसूरत है। And then you will say, और फिर आप कहोगे I want this gift. मुझे भी चाहिए ये। And I pray today God will birth a deep desire if you don't have this gift. A deep desire inside you that you will say, I want this gift also. मेरी प्रार्थना है कि प्रभु अंदर एक चाहत लाए, एक इच्छा लाए अंदर कि मुझे भी ये भेंट चाहिए। And all God's people say, Amen. okay. Now I don't want this to become very, very difficult. It's very easy. मैं नहीं चाहता कि ये बात एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, बहुत उलझी हुई हो जाए। No, बहुत आसान है। it should be so easy. Like just a little child comes to the mother and says, can I get some milk? जैसे एक छोटा बच्चा माँ के पास आकर कहता है क्या मुझे कुछ दूध मिलेगा? So what the mother says? तो माँ क्या कहेगी? Just wait, I'll get it for you. रुको मैं लेके आती हूँ। Simple. वैसे ही। Same way. वैसे ही। You tell Jesus, आप यीशु से I कहो want this gift called tongues. मुझे ये भेंट चाहिए अन्य भाषा में बोलना। Jesus will say, no problem. यीशु कहेंगे कोई समस्या नहीं। Done. हो गया। You will get it. मिल जाएगा। How many of you really want God's power to work in your life? कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में कार्य करे? Okay, now I'll just give you a simple example. We are not going to go there deep, but just a simple example. एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। There was a man called Smith Wigglesworth. एक व्यक्ति था जिसका नाम था स्मिथ विगल्सवर्थ। Yeah, he has raised up 40 dead people. करीब 40 मरे हुए लोगों को उन्होंने जिंदा किया है। So somebody asked him, what is the secret of your life? तो किसी ने उनको पूछा कि आपके जीवन का रहस्य क्या है? He said, every day I pray in tongues for minimum 2 hours. वो उन्होंने कहा कि रोज मैं कम से कम 2 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ And that has helped me और उसके द्वारा मुझे बहुत मदद to मिली raise the dead up. जो मरे हुए उनको जिंदा करने। I don't know what happens. मुझे नहीं पता है क्या होता है। I want to tell you something. मैं इतना कहूँगा Now I think we have
40 days before this year gets over, मुझे right? लग रहा है 40 दिन बचे हैं ये साल समाप्त होने के लिए। Why don't you just pray in tongues for an hour? क्यों ना सिर्फ 1 घंटा प्रार्थना करो अन्य भाषा में? Yeah, hour for a day. एक दिन में 1 घंटा। And I want to tell you, और मैं कहना चाहता हूँ before you hit 31st December, something powerful God will do. 31 दिसंबर तक पहुंचने के पहले प्रभु कुछ सामर्थ्यशाली चीजें आपके लिए जरूर करेंगे। Now this morning I want to talk to you about 3 kinds of tongues. तो इस सुबह में 3 प्रकार के अन्य भाषा के बारे में बोलना चाहता हूँ। Yeah. 1 Corinthians chapter 13 verse 1. पहला कोरिन्थियों 13 में 1। I can speak in tongues of men. मैं मनुष्य की भाषा बोल सकता हूँ। Yeah, so number 1 तो पहला है is called the tongues of men. पहला है मनुष्य की भाषा। I will explain to you everything. मैं समझाऊंगा आपको। Okay. Number 2, get दूसरा, excited. Get उत्साहित हो जाओ। excited. How many of you love God's angels? कितने लोगों को प्रभु के स्वर्गदूत पसंद है? Oh, come on, come on. You better like them now. Because they are the one who are called to serve you. क्योंकि उनको बुलाया गया कि वो आपकी सेवा करें। They are going to serve वो you. आपकी सेवा करेंगे। You don't need to walk alone. आपको अकेले चलने की जरूरत नहीं है। God will send his angels to serve वो you. अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे आपकी सेवा करने के Number लिए। 2. दूसरी बात, Number 2. Okay. Tongues of angels. स्वर्गदूतों की भाषा। Yeah. Number तीसरा, 3. Number 3. 1 Corinthians chapter 14 verse 2. पहला कोरिन्थियों 14 में 2। For one who speaks in an unknown tongue. Okay. जो कोई भी अनजाने Anjana. भाषा में बोलता है। So please write. Number 3 is तीसरा, called unknown tongue. तीसरा है अनजानी भाषा। Yeah. Now we'll take the first one. Number पहला 1. लेंगे Number 1. The tongues of men. मनुष्य की भाषा। All right. Okay. Now before I explain this, I'll tell you a story. बताने के पहले मैं आपको एक पहले कहानी बताता हूँ। Okay. In a place called Guntur, गुंटूर नाम के एक जगह में in a small church. एक छोटी कलीसिया में Okay. So the service is starting, सभा शुरू होने वाली थी। and one family they walk in, एक परिवार अंदर आते हैं, the mother and the daughter. माँ और बेटी। But the father doesn't come; he stays outside. पिता अंदर नहीं आते, वो बाहर ही रहते। Church is very small. कलीसिया छोटी है, Windows are all open. खिड़कियाँ खुली है। The father doesn't come inside because he feels if he comes inside the church, he will become unclean. पिता अंदर नहीं आते क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है अंदर आएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। Everybody with me? Okay. Okay. All these things happen. Okay. Because he feels if I come inside the church, I'll become unclean. उसको ऐसा लग रहा था कलीसिया के अंदर आऊंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। So he stays तो outside. वो बाहर ही रहा। There's a small problem. एक छोटी समस्या थी। Yeah. What is the problem? क्या थी समस्या? He has a daughter. उनकी बेटी है, Yeah. But she has got chicken pox. उसको चिकन पॉक्स हुआ है। Yeah. And they gave medicine, but it was a wrong medicine. उसको दवाई दी थी लेकिन गलत दवाई दे दी। And now, instead of getting healed, those things now are bursting. And, you know, pus is coming. They, चंगाई होने के बदले और भी वो खराब हो रही थी उसकी परिस्थिति। yeah. So the meeting is over. तो सभा समाप्त हुई। Suddenly, the pastor is praying for a girl. अचानक जो पास्टर थे एक लड़की के लिए प्रार्थना कर रहे As थे। he is praying for the girl, जैसे प्रार्थना कर रहे थे, the girl begins to speak in tongues. वो लड़की अन्य भाषा में बोलने लगती है। Suddenly, an angel of God appears. अचानक प्रभु का स्वर्गदूत वहाँ प्रकट होता है। Okay, now I'll come because one of the thing is speaking in the tongues of angels. Okay, suddenly an angel appears, अचानक स्वर्गदूत प्रकट होता है। and the angel tells the pastor, just take oil, lay hands on it, pray, give it to the child, tell her, just apply it. तो वो स्वर्गदूत पास्टर को कहता है तेल लो, उसके ऊपर प्रार्थना करो, वो बच्ची को दो और उसको कहना कि ये लगाना, And she'll be okay. और वो ठीक हो जाएगी। Okay, so the pastor goes, takes oil, तो पास्टर तेल prays, लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, and gives it to the girl and tells the mother, just apply it, she'll be okay. लड़की को देते हैं और माँ को कहते हैं उसको लगाना और ठीक हो जाएगी। Mother and daughter walk out. माँ और बेटी बाहर जाते हैं। As they walk out, जैसे- father comes in. जैसे वो बाहर जाते हैं, पिता अंदर आते हैं। Now starts the new chapter. अब एक नई कहानी शुरू होती है। As soon as the father comes in, जैसे पिता अंदर आते हैं, he comes and asks the pastor, पास्टर को पूछते हैं how does this girl know Latin? ये लड़की लैटिन भाषा कैसे जानती है? So the pastor said, she doesn't know Latin. तो पास्टर ने कहा वो ये भाषा नहीं जानती। She is an uneducated girl. वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। She is working in a tobacco company. एक टबैको की कंपनी में काम कर रही है। She has no idea about Latin. वो लैटिन नहीं जानती। So the pastor is asking, but why are you asking all this? लेकिन पास्टर पूछने लगे ये सब क्यों पूछ रहे हो? You know what he said? पता है क्या कहा? I have worked in Italy for 21 years. मैंने इटली में 21 साल काम किया है।
I know Latin. मैं लैटिन जानता हूँ। And when she is speaking, और जब वो बोल रही थी, she is not speaking to any of you. आपसे किसी से नहीं बोल रही है, She is वो talking to me. वो मुझसे बात And कर she रही is थी telling me और वो मुझे कह रही थी what Jesus did for me. यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, That's why I came inside. इसलिए तो मैं अंदर आया। Tongues of men. मनुष्य की भाषा है, Tongues of men. मनुष्य की भाषा है। One tongue utterance brought a person to Jesus. सिर्फ ये मनुष्य की भाषा में बोलने के द्वारा एक व्यक्ति यीशु में आ गया। What is tongues of men? What? तो ये मनुष्य की भाषा है क्या? है क्या? Please write over there. लिख लो। So when the girl was praying, जब वो लड़की प्रार्थना कर रही थी, she did not know the language. वो भाषा नहीं जानती थी। Okay, so when she was talking Latin, तो जब वो लैटिन में बात कर रही थी, for her, उसके लिए she did not understand. वो तो कुछ भी नहीं समझ पाई। Number two. दूसरी बात। Number two. But when she spoke, लेकिन जब उसने कहा, when she spoke, जब वो बोल रही थी, somebody understood. कोई तो था जो समझा। Can I hear an amen? Amen. So when I say I pray in the tongues of men, तो जब मैं कहता हूँ मैं मनुष्य की भाषा में प्रार्थना करता हूँ, that means इसका मतलब है I don't understand what I'm praying. मैं नहीं समझ रहा हूँ मैं क्या प्रार्थना कर But रहा हूँ, somebody in the crowd is understanding लेकिन what I'm कोई तो saying. है भीड़ में जो समझ पा रहा है मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ। Can I hear a big amen over there? Number three. तीसरी बात, What happened? क्या हुआ? That man came to Jesus. वो व्यक्ति यीशु के पास आया। Yeah, number three. तीसरी बात, Number three. When a man speaks in the tongues of men, जब कोई व्यक्ति मनुष्य की भाषाओं में बोलता है, a witness for Jesus is presented. यीशु के लिए एक साक्षी प्रस्तुत की जाती है। A witness for Jesus is presented. यीशु के लिए एक साक्षी प्रस्तुत की That's जाती why है। demons are now fighting against tongues. इसलिए दुष्ट आत्माएं लड़ रहे हैं ये अन्य भाषा में बोलने के खिलाफ। और उनको जितना लड़ना है लड़ते रहो, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूं बहुत सारे बच्चे लोग हैं जिन्हें एक प्रकाशन मिला है और वो लोग वो प्रकाशन में चलने ही वाले हैं यीशु के नाम में। 1 Corinthians 14:22. पहला कोरिन्थियों 14:22। Therefore tongues are a sign for those who do not believe. इसलिए अन्य भाषा जो है वो चिन्ह है उन लोगों के लिए जो विश्वास नहीं करते। So what is tongues? The tongues of men. What is it? It's a sign. तो मनुष्य की भाषा ये है क्या? ये चिन्ह है। For whom? किसके लिए? For an unbeliever. अविश्वासी के लिए। What's a sign? What's a sign? चिन्ह क्या होता है? Have you traveled? क्या आपने सफर किया है? Yeah? You see signboards ना? साइन बोर्ड होता है। महाबलेश्वर कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर. Okay, not only something is written, but signs are also given. सिर्फ लिखा नहीं लेकिन ऐसे दिशा भी दिखाई जाती है। So, when a person is speaking in the language of man, तो जब कोई व्यक्ति मनुष्य की भाषाओं में बोलता है, what is happening? क्या हो रहा है? They are giving direction. वो दिशा दे रहे हैं। Towards where? कहाँ लेके? कहाँ लेके जा रहे? यीशु के पास लेके जा रहे हैं. Amen. It's not. Come on, be with. So when you, let me tell you, people are fighting against tongues. You are fighting against Jesus. जो लोग ये अन्य भाषा के खिलाफ प्रार्थना करने के अन्य भाषा में प्रार्थना करने के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप यीशु के खिलाफ लड़ रहे हो। Acts chapter 2 and verse 4. Okay, 120 people are together. 120 लोग इकट्ठा हुए थे। Holy Spirit comes down. पवित्र आत्मा नीचे आते हैं। Boom, he comes. नीचे आते हैं। Everybody is filled with the Holy Spirit. सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाते And they हैं all begin to speak in और tongues. सब लोग अन्य भाषा में बोलने लगते हैं। Now when this happened, जब ये हुआ, Jewish people from nearly, I'm not saying exactly, nearly 16 different regions, they had come to Jerusalem to worship God. यहूदी लोग जो करीबन 16 अलग अलग क्षेत्र में से आए थे जेरूसलम में परमेश्वर की आराधना करने। Yeah, and when the Spirit of God came down, जब पवित्र आत्मा नीचे आए, there was a noise around it. एक ऐसे आवाज हो गई Along with that noise, people are speaking in tongues. और वो आवाज के साथ लोग अन्य भाषा में भी बोलने लगे। But this tongue is that first one. लेकिन ये जो अन्य भाषा है वो मनुष्य वाली भाषा, Yeah, the tongues of man. मनुष्य की भाषा। Can I hear an amen there? Okay. So suddenly when they are hearing 120 people talking, तो अचानक जैसे वो सुन रहे हैं 120 लोग बात कर रहे हैं, people are gathering towards that place. लोग वहाँ पे इकट्ठा होने लगे And they are saying, what's happening? और वो कहने लगी ये हो क्या रहा है? What are we hearing? क्या सुन रहे हैं हम? We are hearing these Galileans. They don't know our language, but they are talking in our language. ये तो गलील के लोग हैं लेकिन ये हमारी भाषा में कैसे बोल रहे हैं? Acts chapter 2 verse 11.
प्रेरितों के कार्य 2 में 11। Yeah, what happened now? क्या हुआ अब? So they are saying. वो कहने लगे, So all those 16 groups of people, I'm just putting approximate, okay? ऐसे अंदाजे से बता रहा हूँ 16 अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आए थे, What they are saying? वो क्या क्या कहने लगे? We hear them speaking in our own हम तो tongues. सुन पा रहे हैं, ये हमारी भाषा में बोल रहे हैं। And I want to tell you, और मैं कहना चाहता हूँ, even today, the Lord is using people to draw people to Him. आज भी प्रभु लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे लोगों को अपनी ओर खींचने के So, लिए। what were they talking? What were they talking? क्या बात कर रहे थे? Wonderful works of God. प्रभु के अद्भुत कार्य के बारे में बता रहे थे। And where do we see the wonderful works of God? और प्रभु के अद्भुत कार्य हम कहाँ देखते हैं? Jesus. यीशु में। Where do we see it? कहाँ देखते हैं हम? Cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पे। Can I hear an amen? Amen. Do you know? But as they are hearing, some are saying, "Arey, I think it's morning, early morning, na? So maybe they have drunk." तो जैसे वो सुन रहे थे, कुछ कहने लगे शायद जल्दी सुबह है, लेकिन शायद इन्होंने शराब पी है। Okay, we'll not go that side in हम वहाँ नहीं in जाएंगे। that area. But then suddenly Peter stood up तो अचानक पतरस वहाँ खड़ा हो and he गया gave them the gospel. और सुसमाचार दिया वहाँ। And do you know what happened? पता है क्या हुआ? What happened? Listen, what happened? Acts chapter 2, verse 37. प्रेरितों के कार्य 2 में 37। After they heard what Peter said, पतरस ने क्या कहा, वो सुनने के बाद they are saying, वो कहने लगे, what should we do now? हमने क्या करना है अभी? Hello. Amen. इधर चालू हो गया सब, अन्य भाषा के इधर चालू हुआ है. आमेन। Go to verse 38. वचन 38। So what was the answer? तो जवाब क्या था? What was that? Repent. पश्चाताप करो। And do you know how many repented? और आप जानते हो क्या कितने लोगों ने पश्चाताप किया उसमें? 3,000. 3000। Where did it begin? कहाँ शुरू हुआ ये सब? Yes, the Holy Spirit came. पवित्र आत्मा नीचे आए, They began to speak in tongues. वो अन्य भाषा में बोलने लगे। What tongues? कौन सी भाषा है? Language of men, मनुष्य की भाषा है, which they did not know. जो वो नहीं जानते थे, Others knew it. दूसरे लोग जानते And थे। what was it? और क्या था वो? It was a sign. वो एक चिन्ह था। Where was it taking people? कहाँ लेके जा रहा था वो चिन्ह? Jesus. लोगों को यीशु के पास ला Where रहा था। was it taking people? कहाँ लोगों को लेके जा Cross रहे of थे? Calvary. कलवरी के क्रूस की ओर। What happened in the end? अंत में क्या हुआ? Salvation. उद्धार आया। Number 2 is the tongues of angels. दूसरे प्रकार की अन्य भाषा वो है स्वर्गदूतों की भाषा। Yeah, okay. 1 Corinthians 13 and verse 1. I already gave you that verse. मैंने आपको ये वचन दिया है, पहला कोरिन्थियों 13 में 1। Okay. Now, first of all, let me tell you, angels are very important part of your life and my life. पहले तो मैं आपको बता दूं, स्वर्गदूत जो है आपके और मेरे जीवन के बहुत महत्व का हिस्सा है। After the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के बाद next step दूसरा is कदम the angels of God. वो है प्रभु के स्वर्गदूत। If they don't serve you, you will not be able to do what God has called you to do. अगर वो आपकी सेवा नहीं करेंगे ना, तो जो प्रभु ने आपको बुलाया करने के लिए आप नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे. And let's be conscious that there are angels. और क्यों ना हम थोड़ा सतर्क हो रहे जाए. कि स्वर्गदूत है। Yeah. Hebrews chapter 1 verse 14. इब्रानियों 1 में 14। Okay. So who are these angels? तो ये स्वर्गदूत है कौन? All angels are spirits. सारे स्वर्गदूत आत्माएं हैं। And I pray और मेरी प्रार्थना है from today onwards, आज से आगे you will be able to activate angelic ministry for your life. आपके जीवन के लिए स्वर्गदूतों का कार्य शुरू कर पाए। You don't wait for some man of God to come, आप women of रुको God मत to come. कोई तो प्रभु का जन आए और No, कुछ no, हो। no, no. You know, you are a part of God's family. आप प्रभु के परिवार का भाग हो। Okay. Now, who are angels? कौन है स्वर्गदूत? They are spirits. वो आत्माएं है। Then it says, फिर लिखा है what do they do? वो क्या करते हैं? Yeah, they serve God. वो प्रभु की सेवा करते हैं। And then it और says, फिर लिखा है and they are sent to help. और उनको भेजा गया है मदद करने के मदद लिए। करने के लिए. So the angels of God have to help you. तो प्रभु के स्वर्गदूतों ने आपकी मदद करनी करना है। है. Amen. Have you any time looked around and said, is there somebody to help? क्या आपने यहाँ वहाँ देख के कभी कहा है कि क्या कोई है मदद करने के लिए? Suppose your car is just punctured on the highway. You just look around. Is there somebody to help? हाईवे पे पंचर हो गई गाड़ी, तो आप यहाँ वहाँ देखते हो ना। I have good news for you. मेरे पास अच्छी खबर है आपके लिए। You have angels of God who will help आपके you. पास प्रभु के स्वर्गदूत है जो आपकी मदद करेंगे। Angels are spirit. जो स्वर्गदूत है वो आत्मा है, Yeah, but लेकिन they are a person. वो व्यक्ति है। When I say they are a person, that means they have a soul.
जब मैं कहता हूँ व्यक्ति है, इसका मतलब उनके पास प्राण है। That means they can talk to you. इसका मतलब वो आपसे बात कर They सकते can हैं, communicate to you. आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते They हैं, have उनके emotions. पास भावनाएं हैं, They have will. उनके पास इच्छा है। Can I hear an amen? So when I say angels are a person, तो जब मैं कहता हूँ कि स्वर्गदूत व्यक्ति है, that means they have a soul. इसका मतलब उनके पास प्राण है, They can be happy. वो खुश हो सकते हैं, They can become very mad. वो गुस्सा भी हो सकते हैं। Yeah, you look at Gabriel, you look at Michael, they get very upset sometimes. आप गैब्रियल माइकल जो स्वर्गदूत है उनको देखोगे Yeah. तो पता चलेगा। Yeah, and my prayer is let all of them work for you in the name of मेरी Jesus. प्रार्थना ये सब आपके लिए कार्य करें। Baba, you open the Bible. For healing there are angels. चंगाई के लिए भी स्वर्गदूत है। आपको पता है क्या, वो लोग यीशु के समय पर लोग पड़े रहते थे, Yes. कुंड के बाजू में रुके हुए रहते थे। Yes. साल में एक बार एंजल आके ऐसा पानी हिलाता था। यस, उसे हम लोग क्या कहते हैं ना, एंजल ऑफ हीलिंग। हम इसको कहते हैं चंगाई का स्वर्गदूत। आपको पता है कितने बार बाइबल में एंजल्स लोग आते हैं मैसेज देने, पता है? We call them as messengers. हम उनको कहते हैं कि संदेश लेके आने वाले लोग। एक ही एंजल ने अलग अलग प्रकार के एंजल्स है। यस, जैसे दुष्ट आत्माएं अलग अलग प्रकार के ना, वैसे ही स्वर्गदूत अलग अलग प्रकार के हैं। Amen. और वो लोग आएंगे और आपकी सेवा करेंगे यीशु के नाम में। Amen. Do angels have bodies? क्या स्वर्गदूतों के पास शरीर होता है? Yes. हाँ। 1 Corinthians chapter 15 verse 40. पहला कुरिन्थियों 15 में 40। There are two kinds of bodies normally according to Bible. दो प्रकार के शरीर होते हैं बाइबल के अनुसार। Yes, heavenly body स्वर्गीय शरीर and earthly body. और धरती का शरीर। That means, for example, on the earth. Now we are not talking about animals, fish. No, we are हम not. जानवर मच्छी उसके बारे में नहीं बात उनके कर पास रहे। भी शरीर है, लेकिन we are talking about human. हम Do अभी- human have bodies? Yes. मनुष्य के पास शरीर है क्या? है। Do angels have bodies? स्वर्गदूतों के पास शरीर है। Yes. And by the way, some strangers that you met कुछ अजनबी जिसको आप मिलते हो ना, who have been very good to you, जो आपके प्रति बहुत अच्छे रहे, very kind to you, बहुत भले रहे, maybe they were angels of हो God. सकता है वो प्रभु के स्वर्गदूत हो सकते हैं। Maybe. हो सकता है। That's why Bible says be careful when you come across strangers who are very godly, who are good, who are helpful. Be very, very careful because we do not know whether you have met an angel of God. इसलिए बाइबल में लिखा है सावधान रहना, कभी ऐसे लोगों को मिलते हो जो बहुत अच्छे, बहुत दयालु और वैसे रहते हैं, हो सकता है कि आप एक स्वर्गदूत को मिल लिए। Yeah, some activities that the angels of God will do for you. Some. कुछ कार्य जो प्रभु के स्वर्गदूत आपके लिए करेंगे। Yeah, and I pray it should begin from today in the name of और यही प्रार्थना है कि Jesus. आज से वो शुरू हो जाए। Number one. पहली बात, Angels of God, they love to bring message from God. प्रभु के स्वर्गदूत तो बहुत अच्छा लगता है प्रभु की ओर से संदेश लाने के लिए। Yeah, they love to bring message from God. उनको बहुत अच्छा लगता है प्रभु की ओर से संदेश लेके आने के Okay, लिए। now I will not keep giving you scripture, or should I give you? How many of you know angel called Gabriel came and met a small little girl called who? Mary. Mary. आप जानते हो गैब्रियल जो स्वर्गदूत है मरियम को आके मिले थे Yeah, and what did he say? और क्या कहा? You are highly favored. तुम पे बहुत कृपा है, You are going to have a child. बच्चा होगा तुम्हें। Dang. And I pray और मेरी प्रार्थना that है you and I also will have messages from angels of God. आपके और मेरे पास भी प्रभु के स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश आए। Luke 1:13. लूका Okay. 1:13। Okay. Elizabeth. एलिजाबेथ, She was not having children for a long time. उसको बहुत समय से बच्चे नहीं हो रहे थे। And suddenly one day Zacharias praying अचानक एक दिन जकरिया प्रार्थना कर रहा था and an angel of God came and stood. और प्रभु का स्वर्गदूत आकर खड़ा रह गया। Yeah, मेरी प्रार्थना है कि आप लोग स्वर्गदूत को थोड़ा मिले और थोड़ा देख ले। Amen. I am really praying. Okay. Suddenly he said, don't be afraid. अचानक उसने कहा डरो मत, Your wife is going to have a child. तुम्हारी पत्नी को बच्चा होगा। Angels can physically appear to you and give you message. शारीरिक रूप में स्वर्गदूत प्रकट हो सकते हैं और संदेश दे सकते हैं। Yeah. In your dreams, आपके सपनों में angels can come. स्वर्गदूत वहां भी आ सकते हैं। How many hours you sleep? कितने घंटे सोते 6 hours. Yeah. If you want to have 2-3 dreams in a day, you should learn to sleep for 3 hours. अगर आप चाहते हो कि 2-3 सपने आए आपको एक दिन में, तो आपको 3-3 घंटे सोना सीखना। सीखना है। आप बोलेंगे पास्टर मैं सोता तो डायरेक्ट
डायरेक्ट 7 बजे उठा हूं मैं, बीच में उठता ही नहीं हूं, because as you read the Bible you'll come to know there are times when God begins to appear to people. जैसे आप बाइबल पढ़ोगे उसमें समझ में आता है कि कुछ कुछ ऐसे समय होते हैं जहाँ पर प्रभु प्रकट होते हैं। Okay, anyway, at least 7 दिन में एक ड्रीम तो आना है ना, नहीं आएगा तो प्रभु से झगड़ा करो। Put Acts chapter 2 verse 17. प्रेरितों के कार्य 2 में 17। In the last day I will pour out my spirit. आखिरी दिनों में मैं मेरे आत्मा को उंडेलूंगा। We are already in आखिरी दिन. Yes. And already the spirit of God has been poured out. Amen. And once the spirit of God is poured out, what will happen? और जब पवित्र आत्मा को उंडेला जाएगा तो क्या होगा? Prophecy. भविष्यवाणी। Young people will have visions. जवान लोग दर्शन देखेंगे। And mature people will have dreams. परिपक्व लोग सपने देखेंगे। झगड़ा करने के लिए सीखो प्रभु से, बोलना 7 दिन हो गया, कहाँ है, कोई आया ही नहीं, क्या बात है? चाहे तो मैं अब भी सो जाता हूँ, आना है। अभी मत सोना। कोई लोग तो बोल रहे प्रेज गॉड, इसी चीज के लिए मैं रुका था। ओके, अभी ड्रीम और विजन में ज्यादा फर्क नहीं है। विजन यानी तुम सो नहीं रहे हो लेकिन देख रहे हो। दर्शन मतलब आप सो नहीं रहे हो लेकिन दिखाई दे रहा है। और ड्रीम यानी तुम सो रहे हो और देख रहे हो। सपना मतलब सो रहे हो और देख रहे हो। तो उसमें कोई फर्क नहीं, पास्टर मुझे भी जवान बनना है, मुझे भी विजन देखना है। No, 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 nothing. It's the same thing. One is you are sleeping, one you are not sleeping. एक में That's आप all. सो रहे हो, दूसरे में सो नहीं रहे हो। So from today onward, learn one thing. आज से आगे एक चीज सीख लो। 7 दिन में प्रभु ने बात नहीं किया ना, प्रभु बोलना कट्टी मैं नहीं बात कर रहा हूँ तेरे से अभी से। Be desperate. You are not व्याकुल होना है desperate. अंदर। You are not desperate. आप You are व्याकुल okay. नहीं हो। अब मेरे को अच्छा नींद आया, मैं किसी को देखा नहीं। हेलो, नींद में देखना पड़ता है। मुझे एकदम अच्छा नींद था पास्टर, मैंने किसी को देखा नहीं, मैं अच्छे से सोया और मैं अभी उठा हूं। नहीं नहीं, नींद अच्छे से सोने के लिए नहीं दिया जाता है, नींद में प्रभु हमसे बात करता है। Amen. Amen. Come on, I think you should give the Lord a hand of praise. And it's coming. हो रहा है। And it's coming, it's going to start. ये शुरू होने वाला है। Yeah, in the name of Jesus it's going to यीशु start. के नाम में शुरू होने Can वाला I hear an amen there? Amen. So even if you are 80, praise the Lord. है। 80 साल के भी हो तो प्रभु की स्तुति हो। Yeah. और अगर आप बोल रहे हो ना 3-3 घंटे में मेरा पास्टर मेरा नींद उड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हालेलुया बोलो, बोलना अभी तो अच्छा ही हो गया। 3 घंटे के बाद मैं उठूंगा और अगर मेरे को ड्रीम नहीं आया तो मैं प्रभु से बोलने वाला, वापस मैं सो रहा हूँ, बात करना है। हाँ, ओके। सो नंबर 1, पहली बात, the angels of God, they love to speak to you. I mean, yeah, they are messengers. Sorry. प्रभु के स्वर्गदूत, उनको बहुत पसंद है प्रभु की ओर से संदेश लेके Yeah, आना। sometimes they'll come physically. कभी-कभी शारीरिक रूप में आते हैं, Sometimes they'll come in dreams. कभी-कभी सपनों में भी आते हैं। Okay, let me give you one example. एक उदाहरण देता हूँ। Matthew chapter 2:13. Okay, Joseph is sleeping, यूसुफ सो रहा है and suddenly an angel of God came to him in a dream. और अचानक प्रभु का स्वर्गदूत सपने में आया उसके Yeah, लिए। कहाँ पर आया? सपने में आया। और मैं ये कहता हूँ, वापस सुन लो अच्छे से, सपनों में आपको स्वर्गदूत आने वाले हैं मिलने के लिए यीशु के नाम में। How do you create an atmosphere? Before you sleep, just pray in tongues for some time. सोने के पहले अन्य भाषा में थोड़ा समय प्रार्थना करो। Yes, 5 मिनट प्रार्थना करो। Amen. Yeah, just pray. Sharabaha kanama santo. Number 2, angels will protect you. प्रभु के स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा करेंगे। Yeah, angels will protect you. How many of you are really thankful that you did not get killed? कितने लोग सच में धन्यवाद देते प्रभु के कि आप मरे नहीं। Psalm 91 verse 11. भजन संहिता 91 में गया He will order his angels to protect you. प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे आपको सुरक्षित रखने के Why लिए। don't you lift the Lord and say thank you for my angels? अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दो। Lord, धन्यवाद thank मेरे you स्वर्गदूतों for के my लिए। angels who have protected me so many धन्यवाद times. प्रभु मेरे स्वर्गदूतों के लिए जो कितनी बार उन्होंने मेरी सुरक्षा रखी। God has got angels for you who will protect you. तो प्रभु के पास ऐसे स्वर्गदूत है जो आपको सुरक्षित रखेंगे। Number 3. तीसरी बात, Angels, they love to strengthen you. स्वर्गदूतों को बहुत अच्छा लगता है आपको मजबूती देना। Yes, they love to strengthen you. बहुत अच्छा लगता है मजबूती देना। Has anybody used a football where you have pumped and the football has grown into shape? फुटबॉल का इस्तेमाल किया है जहाँ पे हवा भर के हाँ, हुआ है, बाद में किक मारा है, अच्छा लगा ना, लेकिन जब हवा नहीं था कैसा था, एकदम ये था। And when you know slowly, okay, now listen. अब सुनो, Strengthening is a very important role.
ये मजबूती देना ये बहुत महत्व का काम है उनका। And I see in the life of Jesus, he was strengthened personally by angels of God twice. और मैं यीशु के जीवन में देखता हूँ कि 2 बार स्वर्गदूतों ने यीशु को मजबूती दी। You think about this, if Jesus, Son of God, becoming man, has to be strengthened by angels. अब सोचो यीशु जो परमेश्वर का बेटा है मनुष्य बना, अगर उसको जरूरत थी कि स्वर्गदूत उसको मजबूती दे, How much more तो we? हमें कितना ज्यादा जरूरी है। Jesus fasted for 40 days, 40 nights. यीशु ने 40 दिन 40 रात उपवास किया And after the 40 days, और 40 दिन के बाद angels of God came. प्रभु के स्वर्गदूत आए। Matthew chapter 4 verse 11. मत्ती 4 में 11। Okay, the devil left him, शैतान ने छोड़ा यीशु को। not angel. स्वर्गदूत नहीं, एक नहीं, एक नहीं। अनेक आए. एक नहीं, अनेक आए. Amen. To just help Jesus, यीशु के not मदद one के लिए। angel, many are coming. एक नहीं बहुत आए। I want to say this with all confidence. मैं पूरे आत्मविश्वास से कहना चाहता Not हूँ only one, सिर्फ एक नहीं, thousands will come to help you. 1000 आएंगे आपको मदद करने के लिए। Okay, so what did they do? What did they उन्होंने do? क्या किया? They brought food for him. वो खाना लाए। 40 दिन खाना नहीं खाया प्रभु ने, खाना खिलाया, मजबूती दिया. Amen. And Jesus is ready. और फिर यीशु तैयार थे। When you feel weak, जब आपको कमजोरी महसूस होती when है, I feel weak, जब मुझे कमजोर लगता है, God will send his प्रभु अपने angels. स्वर्गदूतों को भेजेंगे। Let me show you one more thing. One more thing. एक और Now दिखाओ। Jesus is just getting ready to go on the cross. So he's in this Garden of Gethsemane. He's literally, in great pain. तो यीशु तैयार हो रहे हैं क्रूस के ऊपर जाने के लिए, तो उसके पहले रात वो गेत्सेमनी के बागीचे में है और बहुत सारे दर्द से गुजर रहे हैं। Luke 22 verse 43. लूका 22 में 43। So in that garden, तो वो बागीचे में भी in front of him is the cross. यीशु के सामने क्रूस है। In front of him is the cup which is filled with sin and everything which is darkness. यीशु के सामने वो प्याला है जो पाप से भरा है, अंधकार से भरा है, And he has to drink that. और वो प्याला पीना भी है उनको। And before he drinks, there is a strengthening which is और वो पीने के पहले मजबूती दी जा रही है उनको। Yes, I want to tell you, if you walk with God, strength will come from God through the angels अगर of प्रभु God. के साथ चलोगे तो आपको जरूर मजबूती मिलेगी प्रभु की ओर से स्वर्गदूतों के द्वारा। Now this is not physical strength. This is not. ये शारीरिक मजबूती नहीं है। No. Bible says he was broken inside. बाइबल में लिखा है वो अंदर टूट गए थे, He was sweating blood. जैसे खून से पसीने में खून आ रहा था। He who was joined with the Father, he knew now this is going to be broken. वो जो पिता के साथ एक थे, वो जानते थे अभी ये दूर होने वाले हैं। He just didn't understand how this whole thing is going to go. वो नहीं जानते थे ये पूरी तरह सब कैसे होगा। Suddenly the Father sends the angels of God. अचानक पिता स्वर्गदूतों को भेजते हैं। I want to tell you, मैं कहना चाहता हूँ, you may feel lonely when you walk with God. जब आप प्रभु के साथ चलते हो ना, शायद अकेलापन महसूस करोगे, But be of good cheer. लेकिन खुश हो जाओ, God will not leave you alone. प्रभु आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। He will send us angels. They will strengthen you. अपने स्वर्गदूतों को जरूर भेजेंगे आपको मजबूती देने के लिए। So how to activate these angels? तो ये स्वर्गदूतों को कैसे कार्य में हमने लाना है? कैसे कार्य में लाना है? Number 1, पहली बात, learn to pray. प्रार्थना करना सीखो। Look at Jesus, Matthew 26 verse 53. यीशु को देखो, मत्ती 26 में 53। So when people came to catch him, जब लोग आए यीशु को पकड़ने के लिए, and you know what, Peter, you know what he did? Remove the sword, cut the ear, पतरस ने तलवार निकाली, एक व्यक्ति का कान काट दिया। and then Jesus told them, फिर see, यीशु ने कहा, don't do all this fighting. ये सब झगड़ा मत करो। If I pray, अगर मैं प्रार्थना करूंगा ना, if I ask, अगर मांगूंगा, my Father will send 12 legions of angels. मेरे पिता 12 ऐसे स्वर्गदूतों का झुंड भेजेंगे। Let me calculate and give it to you. One legion means at least 6,000 angels. एक लीजन का मतलब है कम से कम 6000। अभी कोई लोग बोलते हैं 5,500, जो भी लो, तुम 5,500 लो, 6 लो, चलो हम लोग 5,000 लेते हैं। 5 into 12, how much is it? 60 हाँ? 60,000। 60,000। यीशु कह रहे हैं, मैं अगर प्रार्थना करूंगा ना, तो मुझे पता है मेरे पिता मेरे लिए 60,000 स्वर्गदूत भेज सकते हैं। और ये कितने हैं? चुन्नू मुन्नू लोग कितने हैं? ये कितने ढाल और ये सब कितने हैं? वाओ, इनको पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाएंगे। यस, वाओ। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस वक्त उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या सीख रहे हैं? अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपको मिलेगा क्या? Yes. Yes, that's what I'm saying. Amen.
Amen. Jesus is teaching us, just pray, I'll send it. यीशु में सिखा रहे प्रार्थना करो मैं भेजूंगा। In prayer, you can pray in your language. प्रार्थना में आप अपनी खुद की भाषा में प्रार्थना कर सकते हो, Or या फिर you can use your spirit and pray in tongues. अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो। Okay, somebody told me, Pastor, I've been praying in tongues for a long time. तो किसी ने कहा बहुत समय से मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ And I'm feeling थोड़ा सा unusual activity in my house. और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे घर में कुछ असाधारण कार्य चल रहा है। आपको लगता है कि ये सब ठीक है कि पास्टर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ और हर दिन मैं 2-2 घंटा प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर ना थोड़ा अनयूजुअल एक्टिविटी हो रहा है। मुझे सडनली आवाज आ रहा है। मैंने बोला क्या आवाज आया? नहीं ऐसा कोई तो भी चल रहा है, इतना ही है ना। मैंने बोला और क्या हो रहा है? बोला नहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा गया करके। अच्छा, मैंने बोला और क्या हो रहा है? नहीं पता नहीं, बहुत कुछ हो रहा है लगता है। ओके, मैंने बोला नो प्रॉब्लम। नाउ सपोज यू गो टू दुबई। मानो आप दुबई जाते हो और वहां पे तुम खड़े रह के मलयालम में बात करते हो और आपका आवाज सुन के मराठी आदमी आएगा या मलयाली आदमी आएगा? बराबर है ना। सपोज आप उधर जाके मराठी में बात करते हो, मलयाली आदमी आएगा या मराठी वाला आएगा? मराठी। वैसे ही जब आप अन्य भाषा में बात करते हो ना, कभी कभी आप स्वर्गदूतों के भाषा में बात करते हो Amen. और उन्हें अट्रैक्ट करते हो। वाह, That's what I wanted. Amen. May the Lord help us and bless us.